السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کی کلاس میں ہم آپ کے یو جی سی نیٹ دسمبر 2011 میں آئے ہوئے پیپر کو پڑھنے والے ہیں۔ یہ پیپر جو میں پیش کر رہی ہوں، جو سیریز میں ڈے بائی ڈے ڈال رہی ہوں، آپ کو ان سبھی پیپرز کو کور کرنا ہے اور یاد کر لینا ہے۔ اس میں پہلا سوال ہے، مثنوی شہر صورت کس کی تخلیق ہے؟ یہاں سوال میں تھوڑا مس پرنٹ ہے۔ یہ مثنوی ہے شہر صورت، یعنی صورت شہر کے بارے میں یہ مثنوی لکھی گئی تھی۔ یہ کس نے لکھی تھی؟ تو یہ مثنوی تھی ولی دکنی کی۔ ولی دکنی جنہیں اردو شاعری کا بابا آدم کہا جاتا ہے، جو 1700 عیسوی میں دہلی آئے اور 1719 عیسوی میں ان کا دیوان دہلی آیا۔ دوسرا سوال ہے، ان میں سے مرزا علی لطف کا تذکرہ کون سا ہے؟ تو یہ تذکرہ ہے گلشن ہند۔ تیسرا سوال ہے، سندر لال کس مشہور افسانے کا کردار ہے؟ تو یہ کردار ہے لاجونتی کا۔ اور لاجونتی کس کا افسانہ ہے؟ تو یہ افسانہ ہے بیدی کا، راجندر سنگھ بیدی۔ نیکسٹ ہے، ماہرین لسانیات نے ہند آریائی زبانوں کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے؟ یہ سوال بار بار ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو ہند آریائی جو ادوار ہے، یا یہ کہے کہ ہند آریائی زبانوں کو 3 ادواروں میں بانٹا گیا ہے۔ ایک تو جو میں نے آپ کو بتایا تھا جدید تھا، ایک قدیم تھا اور ایک تھا وسطی۔ پانچواں سوال ہے، تصویر درد کس کی شاعری ہے؟ یا تصویر درد کس شاعر کی تخلیق ہے؟ تو یہ تخلیق ہے اقبال کی، علامہ اقبال کی۔ چھٹا سوال ہے، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ اس میں ہمیں ناول نگار دیے ہوئے ہیں اور سامنے ان کے ناول کے نام دے رکھے ہیں، تو ہمیں صحیح ناول نگار سے ان کے ناولوں کے زمرے کو جوڑنا ہے۔ تو اس میں صحیح جو آپ کا رہے گا وہ رہے گا آپشن نمبر سی، قرۃ العین حیدر والا۔ ان کے ناول ہے آگ کا دریا، کار جہاں دراز ہے، چاندنی بیگم، گردش رنگ چمن۔ نیکسٹ جو سوال ہے وہ ہے 7واں، یہ شعر کس کا ہے؟ رات بھر دیدہ نمناک میں لہراتے رہے، سانس کی طرح سے آپ آتے رہے جاتے رہے۔ تو یہ شعر ہے مخدوم محی الدین کا۔ 8واں سوال ہے، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، یہ مصرع کس کا ہے؟ تو یہ لائن جو لکھی تھی وہ ہے میر کی، یعنی میر تقی میر کی۔ نیکسٹ ہے، حیات جاوید کس کی حالات زندگی پر مبنی ہے؟ تو یہ مبنی ہے سر سید احمد خاں کی زندگی کے اوپر۔ حیات جاوید جو ہے وہ الطاف حسین حالی نے لکھی تھی، اور اس کے اندر سر سید احمد خاں کی بایوگرافی کو پیش کیا گیا تھا۔ نیکسٹ ہے، میر اور سودا کہاں مدفون ہوئے؟ تو میر اور سودا دونوں ہی لکھنؤ میں مدفون ہوئے تھے۔ 11واں سوال ہے، کون سا مجموعہ کلام اقبال کا نہیں ہے؟ تو اقبال کے 4 مجموعے آ چکے ہیں، آپ نوٹ ڈاؤن کریں، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز۔ تو جو جنون و حکمت ہے وہ ان کا مجموعہ نہیں ہے۔ 12واں سوال ہے، دلی کا دبستان شاعری کس کی تصنیف ہے؟ اس میں آنسر رہے گا نور الحسن ہاشمی۔ اور یہی والا سوال ابھی حال ہی میں RPSC میں بھی پوچھا گیا تھا، تو اس سوال کو آپ اچھے سے دیکھ لیں، کیونکہ جو کتابوں والے سوال ہوتے ہیں، یعنی تصانیف والے سوال ہوتے ہیں کہ تصانیف کس نے لکھی، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں۔ تو دلی کا دبستان شاعری لکھی ہے نور الحسن ہاشمی نے۔
13वां सवाल है, इनमें से कौन सा अफसानवी मजमुआ प्रेमचंद का नहीं है? तो वारदात तो प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ है, आखिरी तोहफ़ा भी है, ज़ादे राह भी है, लेकिन जो नज़ारे हैं वो प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, दिल्ली में सादुल्ला गुलशन से किस दक्कनी शायर ने मुलाकात की? तो मुलाकात करने वाले थे वली दक्कनी, और उन्होंने की भी थी। 15वां सवाल है, इनमें मगरिबी हिंदी की बोली कौन सी है? तो मगरिबी हिंदी की मैंने आपको 5 बोलियां कई बार बताई है, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी, हरियाणवी। ये 5 बोलियां आपको याद कर लेनी है। अब उन्होंने पूछा है कि कौन सी है, तो इन 5 में से जो आपको नज़र आ रही है यानी हरियाणी, यही इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, दास्तान के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? तो दास्तान के बारे में ये बयान दुरुस्त है कि दास्तान में माफुकुल फितरत अनासिर से भी मदद ली जाती है। माफुकुल फितरत अनासिर मतलब कि जिन, देव, भूत, परी, इन सब चीज़ों का जिक्र करना। 17वां सवाल है, अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है? तो ये है 19वीं सदी की तहरीक। जो अलीगढ़ तहरीक है वो 19वीं सदी की तहरीक है। 18वां सवाल है, ज़िंदगी के मोड़ पर किसका मशहूर अफसाना है? तो ये अफसाना है कृष्ण चंद्र का। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक के पहले इजलास का खुतबा किसने दिया था? तो वो खुतबा देने वाले थे प्रेमचंद। 20वां सवाल है, लाजवंती किसका मशहूर अफसाना है? तो ये अफसाना है बेदी का, राजेंद्र सिंह बेदी का। नेक्स्ट आपका सवाल है 21वां। इसमें पूछा गया है, गज़ल को नीम वहशी सिनफ़े सुखन किसने कहा? तो ये कहा है कलीमुद्दीन अहमद ने। जबकि अज़मतुल्लाह जो है वो कहते हैं कि गज़ल की जो गर्दन है वो बेतकल्लुफ़ उड़ा देनी चाहिए। इसके अलावा हाली कहते हैं कि मुझे गज़ल में संडास की बदबू महसूस होती है। 22वां सवाल है, सरो, सनोबर और शमशाद की तशबीह किससे दी जाती है? तो ये तशबीह दी जाती है कद से, यानी हाइट से। 23वां सवाल है कि वहाँ एक जवा था परसराम नाम, खुशंदाम खुशकामत खुशकराम। इस शेर में कौन सी सनत है? तो इस शेर में हमें नज़र आती है तंसीकुल सफ़ात, और तंसीकुल सफ़ात उस सनत को कहते हैं जिसमें शायर जो होता है वो कंटिन्यू कई सारी खूबियाँ एक साथ बयान कर देता है। 24वां सवाल है, शेर शोर अंगेज़ किस शायर के कलाम की शिरे है? तो ये है मीर के कलाम की शिरे। नेक्स्ट है, गौतम नीलंबर किस नॉवेल का किरदार है? तो ये किरदार है आग का दरिया का। 26वां सवाल है, दक्कनी शोरा में 12 प्यारियों का आशिक कौन है? कई बार मैंने इस सवाल को आपको बताया है कि दक्कनी शोरा में 12 प्यारियों का आशिक कुली कुतुब शाह को माना जाता है। नेक्स्ट है, सिंध में उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया किसने पेश किया? तो ये नज़रिया पेश करने वाले थे सैयद सुलेमान नदवी। आपको सारे नज़रियों को जान लेना है क्योंकि एक सवाल आपका सीधा सीधा नज़रियों में से बनता ही है, और आप अगर इन नज़रियों को पढ़ना चाहते हैं तो मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप उस पर जाएं और अच्छे से उसे नोट डाउन कर लें। 28वां सवाल है, ज़मानी एतबार से कौन सी तरतीब सही है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा दास्तान, नावल, मुख्तसर अफसाना और रिपोर्टाज। यानी पहले तो था हमारा दास्तान, यानी पहले दास्तान आई, फिर नावल आया, फिर अफसाना आया और लास्ट में रिपोर्टाज। 29वां सवाल है, इनमें से हयातुल्लाह अंसारी का नावल कौन सा है? कई बार नाम आ चुका है, लहू के फूल। नेक्स्ट है, ईरान में अजनबी किस शायर का मजमुआ कलाम है? तो ये मजमुआ कलाम है नून मीम राशिद का। नेक्स्ट है, शेर मुकम्मल कीजिए, यानी एक
डैश डैश जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है उसमें आपको वर्ड लिखना है। अफसरदगी सोख्ता सामा है मीर, दामन को टुक हिला के बुझी है दिलों की आग, तो यहाँ आएगा दिलों। 32वां सवाल है फ़िरोज़ और महमूद किस दौर के शायर हैं? तो फ़िरोज़ और महमूद कुतुब शाही दौर के शायर हैं, और कुतुब शाही दौर के जितने भी शायर गुज़रे हैं आपको इन सभी को पढ़ के जाना है, याद करके जाना है। इसकी वीडियो मैंने पहले ही डाल दी है। नेक्स्ट है उर्दू में मंजूम ड्रामों की शुरुआत किसने की? तो ये शुरुआत करने वाले थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह का एक ड्रामा है राधा कन्हैया जो बहुत फेमस हुआ, बहुत मशहूर हुआ। 34वां सवाल है उर्दू गज़ल को बेवक्त की रागनी किसने कहा है? तो उर्दू गज़ल को बेवक्त की रागनी करार देने वाले हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। अब आप लोगों को ये बताना है कि हाली कब और कहाँ पैदा हुए। नेक्स्ट सवाल है 35वां, इनमें से कौन सा जुज़ू कसीदे का नहीं है? तो जो सरापा है वो मरसिए के अंदर होता है, इसलिए कसीदे का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है हसरत मोहानी का असल नाम बताए। तो हसरत का जो असल नाम है वो है सैयद फजलुल हसन। 37वां सवाल है मसनवी सैफुल मुलूक बदिउल जमाल के मुसन्निफ़ कौन है? तो इसके मुसन्निफ़ जो है उनका नाम है गवासी। नेक्स्ट है इनमें से हाली की तसनीफ़ कौन सी है? तो हाली की तसनीफ़ है मजालिसुन निसा। 39वां सवाल है किताब तरक्की पसंद अदब का मुसन्निफ़ कौन है? तो तरक्की पसंद अदब किताब है अज़ीज़ अहमद की। 40वां सवाल है कसीदे के लिए ज़रूरी है? आंसर आएगा बुलंद तख़य्युल और शौकत अल्फाज। 41वां सवाल है जोगन का किरदार किस मसनवी में मिलता है? तो ये किरदार हमें नज़र आता है सहरुल बयान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 यानी 42। इसमें पूछा गया है मिर्ज़ा गालिब का सने वफ़ात क्या है, यानी इंतकाल कब हुआ था? तो उनका इंतकाल हुआ था 1869 में। अब आप लोग ये बताएं कि मिर्ज़ा गालिब की विलादत कब हुई। नेक्स्ट है इंदु किस अफसाने का किरदार है? तो इंदु जो है वो अपने दुख मुझे दे दो के अंदर नज़र आती है। 44वां सवाल है इनमें से कौन सा अफसाना कृष्णचंद्र का नहीं है? तो जो आखिरी कोशिश है वो कृष्णचंद्र का अफसाना नहीं है। नेक्स्ट है इनमें से एहतशाम हुसैन की मुरत्तबा किताब कौन सी है? मुरत्तबा किताब यानी जिसको उन्होंने तरतीब दिया है, तो वो किताब है तनकीदी नज़रियात। नेक्स्ट है शेर मुकम्मल कीजिए। हेरा हूँ कि दिल को रोऊँ पीटूँ जिगर को मैं, मुकद्दर हो तो साथ रखूँ नोहागर को मैं। इसमें ब्लैंक वर्स में जो आएगा वो आने वाला है नोहागर। नोहागर होता है एक होता है दुखों का बयान करने वाला, परेशानियों को बताने वाला सबको, या रोने वाला। 47वां सवाल है इनमें से कदीम किताब कौन सी है? कदीम मतलब पुरानी किताब कौन सी है? तो वो है मसनवी पदम राव। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा किरदार मसनवी सहरुल बयान का नहीं है? तो जो महताब रुख है वो सहरुल बयान में नहीं है। सहरुल बयान में हमें नज़र आते हैं बेनज़ीर, बद्र मुनीर, नज़्मुन निसा, ये सब हमें सहरुल बयान में नज़र आते हैं, लेकिन महताब रुख इसमें नज़र नहीं आती है। नेक्स्ट है 49। इसमें पूछा गया है शेर मुकम्मल कीजिए। दीदनी है शिकस्तगी दिल की क्या इमारत डैश डैश, तो इसमें आएगा गमों ने ढाई है। आखिरी और 50वां सवाल है तज़किरा नकातुल शोरा किस ज़बान के अंदर लिखा गया? तो ये लिखा गया था फ़ारसी के अंदर। इस तरह आज हमने पढ़े हैं पूरे 50 सवाल, और इन
پورے سوالات کو آپ کو یاد کر لینا ہے، لرن کر لینا ہے۔ شکریہ۔